Welcome all to Cricket Analysis. We came up with a video a while ago about the India vs New Zealand series schedule, India's squad and the probable playing 11 for the first T20I. So in this video, we will talk about if the Indian management is making some mistakes in the selection of World Cups or be it small series. You'll get to know what I mean later in the video. So let's start. Number 1. Why did they drop Hardik Pandya from this series? When a player is underperforming or trying to regain form, it's necessary he gets games. It's necessary he's being played many games against top class teams. And I think it would have been great if he had been picked for this series because you want to build the players who you want to pick for the next T20 World Cup, which is in October 2022. And I think Hardik Pandya is surely a contender. Number 2. Why did they not pick Shardul Thakur? It's not like he has played a lot of cricket lately. He was dropped for 2 tests in the England series and has not been consistently playing white ball games, so it's not a point that you are resting him. And then you picked him for the T20 World Cup, which means he's too good a player. But now you've dropped him. He might be thinking, what did I do? Number 3, the same case with Rahul Chahar and Varun Chakravarti. You took them in the Indian team on the basis of their IPL performances, played them in a small series against Sri Lanka, and picked them for the T20 World Cup. Okay, if they are good enough, then fine. But why weren't they taken for this series? Rahul Chahar played 1 game and Varun played 2 or 3. Now you dropped them for the New Zealand series and went back to Chahal, who was dropped for the World Cup. So this is not how players are made or built. Rather, this is how they are misused and damaged. Number 4, missing the old and keeping the new. The biggest example of this is Shikhar Dhawan. First you dropped him from tests in 2018, that's a different topic, and now you're ignoring him in T20Is, not taking him for the World Cup or this series. He's literally a fantastic player, and looking at his performances in the IPL, be it of this year, 2020 or 2019, he has been consistent throughout. Another example is Yuzvendra Chahal. You played him in almost all games between 2016 and 20, be it ODIs or T20, and he was consistently performing in the IPL also for RCB, showed faith in him, and he also delivered. But you suddenly dropped him for the T20 World Cup and went for young guns. This was absolutely pathetic. And now you've dropped Chahal, and picked Chahal. So here I'll tell you a thing. In 2016, around the Champions Trophy, India decided to drop finger spinners such as Jadeja or Ashwin, and they were performing at that time. You picked them for the 2015 World Cup or the 16 T20 World Cup, and then you dropped them and you suddenly went to wrist spinners such as Kuldeep and Chahal. Now in 2021, the absolutely opposite is happening. You've gone for wrist spinners again, such as Akshar Patel, Ashwin and Jadeja, and you've absolutely ignored the wrist spinners. So this is not how a team is made. You have to build a uniform culture. If you get wrist spinners at one time, then the finger spinners, both have to work together. So this is just a point and I'm not targeting anything at all. Point number 5. Not playing players at their original position. It's a very simple point. अगर हम players को उनकी position पे ही नहीं खिलाएंगे, तो then how will they deliver to their utmost capacity? अगर आप कोहली को 5 डाउन खिलाते हैं, तो क्या कोहली एक इनिंग्स बिल्ड करके आपको वो रन दे सकते हैं जो वो 1 डाउन आगे दे सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. एवरी प्लेयर हैज अ पैटर्न ऑफ प्ले जो उसको तभी मिलता है जब वो अपनी पोजीशन पे भी खेलता है. इसके दोनों टेक्निकल और प्रैक्टिकल रीजन हो सकते हैं. टेक्निकल रीजन ये, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रोहित शर्मा को 2 डाउन खिलाते हैं, इससे रोहित शर्मा एक तो न्यू बॉल को प्ले नहीं करेंगे. न्यू बॉल को अगर वो प्ले नहीं करेंगे तो उससे उनकी बैट पे टाइमिंग वेल नहीं होगी. एंड वी ऑल नो दैट रोहित शर्मा ओनली प्लेज वेल व्हेन ही हैज टाइम्ड अ फ्यू 6 to 7 बॉल्स वेल. ऑल्सो इससे क्या होता है कि पावर प्ले में रोहित शर्मा डजंट गेट टाइम. एंड वी हैव ऑलवेज सीन हाउ रोहित शर्मा ट्राइज टू हिट अबव द फील्डर्स इन द इनर सर्कल टू गेट अ फ्यू बाउंड्रीज हियर एंड देयर एंड गेट इनटू द फॉर्म. बट अगर हम उन्हें 2 डाउन खिलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इवन आफ्टर अ कोलैप्स ही कम्स एट फॉर एग्जाम्पल द 8th ओवर, तो अभी फील्ड बहुत स्प्रेड आउट है और ऐसे में वो टाइम तो कर पाएंगे लेकिन फिर वो बाउंड्री नहीं ला पाएंगे. एंड विद दैट द फ्लो ऑफ द बैट डजंट कम एंड इट विल टेक हिम मोर टाइम टू स्कोर मोर रन्स. नाउ द प्रैक्टिकल और द लॉजिकल रीजन टू दिस इज कॉन्फिडेंस एंड एक्सपीरियंस. A player who has played for about 7 years of domestic cricket as an opener,
अगर आप उसको उसका पहला इंटरनेशनल गेम 4 डाउन खिलाते हो, देन व्हाट हैपेंस? सो इफ ही प्लेज एज एन ओपनर, ही इज वेरी वेल एक्लिमेटाइज्ड विद द सिचुएशन. उसको पता है कि मुझे आके क्या करना है. इवन दो उसने वो लेवल ऑफ प्लेयर्स नहीं खेले हैं, उसने वो कंडीशन शायद खेली हो, तो वो उन कंडीशन से थोड़ा एक्सपीरियंस निकालेगा जो उसने गेन करा है डोमेस्टिक खेल के. लेकिन अगर आप उसे डायरेक्टली 3 डाउन ले आते हो, तो एक तो वो लेवल उसके पास नहीं है, दूसरा उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है कि वो उस पर खेल पाए. नाउ अगेन, व्हाट आर द फ्यू एग्जांपल्स जो हम इंडियन टीम में आजकल देख रहे हैं जहां पे प्लेयर्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं खेल रहे हैं. सो वन अपकमिंग एग्जांपल वुड बी शुभमन गिल प्लेइंग एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन. नाउ शुभमन गिल इज अ एब्सोल्यूट ब्रिलियंट ऑप्शन एज एन ओपनर इन टेस्ट अगर राहुल या रोहित में से कोई फॉर्म नहीं पकड़ता है. एंड इंडिया में शुभमन गिल विल बी ग्रेट बिकॉज इंडिया में हो सकता है रोहित शर्मा डजंट फाइंड दैट फॉर्म, बिकॉज वो बाहर की सिचुएशन से अभी बहुत एक्लिमेटाइज हो गए हैं और किसी और सिचुएशन में आने में उन्हें बहुत टाइम लगता है. फॉर एग्जाम्पल, इट टुक हिम अबाउट 6 years टू गेट इनटू फॉरेन पिचेस में टेस्ट में सेंचुरी मारने के लिए. 6 years. तो वापस अगर वो इंडियन मोड पे आते हैं, इन्हें कितना टाइम लगता है, बिकॉज नाउ ही हैज द एक्स्ट्रा प्रेशर और वाइस कैप्टनसी ऑल्सो एंड कैप्टनसी में भी, तो उन्हें उनसे कितना प्रेशर पड़ता है. ऐसी सिचुएशन पे शुभमन गिल may be a nice backup opener if Rohit Sharma doesn't find form, or if they're trying to rest KL Rahul and then play another better opener with Rohit Sharma rather than playing Hanuma Vihari or maybe Cheteshwar Pujara of the order. But the options that they're considering now is to play Shubman Gill as a middle order batsman. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जिसलिए पुजारा और रहाने को they can drop and they can have another youngster who will serve them at that position for the next 7 to 8 years. बट ऐसा क्यों? इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 1.5 बिलियन पीपल, जिसमें से आराम से करीब 15 to 20 मिलियन पीपल एटलीस्ट प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट एवरी डेकेड. तो उसमें से इतना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा इतना स्ट्रांग है, जिसमें रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली, विजय हजारे, ऑल सच कॉम्पिटिशन आर देयर. इसमें से कैन यू नॉट फाइंड टैलेंट? पहले टैलेंट हंट कॉम्पिटिशन होते थे, अब उनकी भी जरूरत नहीं है. उनके नाम पे आईपीएल शुरू हो गया. आईपीएल से एवरी ईयर एटलीस्ट 3 to 4 प्लेयर्स निकलते हैं जो टीम में डायरेक्टली आ जाते हैं. पिछले साल वी सॉ देवदत्त पाडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड directly coming into the Sri Lankan squad on the basis of their performances. This year we seeing Harshil Patel and Venkatesh Iyer directly coming. उसके पहले हमने बहुत सारे प्लेयर्स देखे हैं जो अब रेगुलर्स बन गए. युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी. तो अब भी अगर आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं निकाल पा रहे, आपने वही एक बंदा जो आपने T20 से निकाला, आईपीएल से निकाला, उसे आपने ओपन कराया, अब आप उसे मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, तो आप सेम ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं लेकिन कुछ नया नहीं ला रहे. सेम ही पैटर्न से सेम ही बंदे हर जगह डाल रहे हैं. जब तक वो खत्म नहीं होंगे आप नया लॉट नहीं ला रहे. ये नहीं करना चाहिए. नाउ अगेन द पॉइंट कम्स, एक और हम एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल नीतीश राणा. नाउ नीतीश राणा को केकेआर में दे गॉट हिम फ्रॉम ओपनिंग टू मिडिल ऑर्डर. ब्रिलियंट मूव. अगर आपके पास वेंकटेश अय्यर है, शुभमन गिल है, राहुल त्रिपाठी है, टॉप ऑर्डर इतना अच्छा बन रहा है, तो नीतीश राणा को नीचे आना बनता है. लेकिन नीतीश राणा बीच में तब आ रहे हैं जब ऊपर नीचे इस्टेब्लिश से भी ज्यादा इस्टेब्लिश बैट्समैन है. नीचे आपके पास बेहतरीन बैटिंग है रसल, मॉर्गन, डीके की. ऊपर आपके पास यंगस्टर्स हैं जो रन पे रन मार रहे हैं. तो नीतीश राणा बीच में आके एक जॉइंट सा बन जाते हैं, अ प्रॉपर बैट्समैन हु कैन बी देयर. बट एट द सेम टाइम क्या वो इंडिया को, अगर आप उन्हें इस बेसिस पे खिला दें मिडिल ऑर्डर में, क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे? क्योंकि इन द इंडियन स्क्वाड 2 डाउन is not a link between top and middle and top and lower order. He is a proper batsman who's there to score when India is 115 for 2 after 15 overs or when India is 70 for 2 after 8 overs. तो दोनों में या तो आपको एक्सेलरेट करना है या आपको बिल्ड करना है, आपको कुछ ज्वाइन नहीं करना है. KKR is usually in situations such as 136 for 2 in 14 overs. तो जैसे ही इनमें से कोई आउट होएगा, रसल आएंगे और एंड के 5 ओवर में रन मारेंगे. Exactly that point comes into play कि you are not making the players play where they want to and then dropping them when they're not performing where you want them to play. तो ऐसी सिचुएशन पे, ऐसे पॉइंट्स पे BCCI should focus more और प्लेयर्स को उनकी पोजीशन पे ज़्यादा चांस देना चाहिए जिसलिए दे कैन एटलीस्ट प्रूव देमसेल्व्स. क्योंकि उसने इतनी मेहनत करके वहां तक पहुंचा और आपने उसे कहीं और ही खिला दिया और उस बेसिस पे आपने उसे ड्रॉप कर दिया.